everyone, myself Dr. Anjali Mishra. I have completed my MBBS in this 2025 March and appeared for the NEET examination for the first time. I got All India rank of 315 in this NEET 2025 examination. And today in this video, I will be talking about how to review your grand tests. So let's get started. So आपको अपने ग्रैंड टेस्ट को कैसे रिव्यू करना है, आई विल बी गिविंग यू सम 5 स्टेप्स by which following those steps you can review your grand test very efficiently. So let's get started. The first point is fix a particular day and fix a particular time for appearing your grand test. What does it mean? देखो, आपके पूरे शेड्यूल में जो आप पूरे वीक में रिवाइज करोगे या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करोगे, despite all these, fix a particular day for giving a grand test. For example, you have fixed Sunday for giving your test. तो आप संडे को फिक्स रखो कि no matters what duties you are having or what work you are having, but you have to appear for the grand test for sure. So इससे क्या होगा कि इससे आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा to appear for giving the grand test, and that is a very important point. And the next is fix that particular time slot in that time slot you will be appearing for the grand test. For example, 9 to 12. So it means you have fixed a particular day, for example Sunday, and fixed a particular time slot, for example 9 to 12, for appearing your GT. So this is the most important step. The second step is take a break between completing your GT and starting the review. What does it mean? इट मीन्स कि आपको एक 9 to 12 3 और 3.5 आवर्स बैठने के बाद योर माइंड विल बी एग्जॉस्टेड, सो यू नीड अ पर्टिकुलर ब्रेक फॉर 1 to 2 आवर्स बिफोर रिव्यूइंग योर mistakes or before reviewing your GT. So by this your efficiency will be improved. तो आप अपने पर्टिकुलर जीटी को कंप्लीट करने के बाद और उसे रिव्यू करने से पहले उसके बीच में आप एक से 2 घंटे का ब्रेक ले लो. दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन दी एफिशिएंसी. सो नेक्स्ट, द थर्ड स्टेप इज डिवाइड योर क्वेश्चंस, द 200 क्वेश्चंस इनटू करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड एंड गेस्ड. ठीक है, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गेटिंग करेक्ट, incorrect or guess. The guessed is very important, and the questions you have unattempted. Next is start reviewing those questions. What does it mean? It means first of all you have to review the questions, 200 questions in a particular order. First of all you have to review your incorrect questions, then second is unattempted questions, the third is guessed questions, and the final is correct questions. So how to review that? First of all click on that incorrect question, read the question once more and analyze कि आपने उस क्वेश्चन में जो आपने ऑप्शन मार्क करा, जो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, कि जो आपने थिंकिंग करी और जो आंसर में था, व्हाट वाज द मेन गैप बिटवीन योर थिंकिंग एंड द करेक्ट आंसर. तो आपको इस रिव्यू से ये पता चल जाएगा कि वेदर योर मिस्टेक यू विल एनालाइज ऑन इट्स ओन, कि जो आपकी गलती है दैट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल एरर. मीन्स कि आपने पढ़ा तो है, आपको पता भी है, लेकिन आप उसे अप्लाई नहीं कर पाए. इट मीन्स दिस वॉज योर कॉन्सेप्चुअल एरर. द सेकेंड इज सिली मिस्टेक्स. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इन 200 क्वेश्चंस, मे बी 5 to 10 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिली मिस्टेक. सो यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दोज क्वेश्चंस. And the third mistake will be for example the questions you have read earlier, but आपको वो उस टाइम पे क्वेश्चन करते वक्त याद नहीं आया या फिर आप कंफ्यूज हो गए बिटवीन 2 ऑप्शंस एंड यू हैव मार्क द इनकरेक्ट वन. तो आपको वो मिस्टेक्स फिगर आउट करनी है. एंड द फोर्थ इज अननोन, मतलब उस क्वेश्चन के बारे में या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं था. तो आपको अपनी मिस्टेक्स को इन 4 चीज़ों में डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल दी conceptual error, second is silly mistakes, the third is unknown facts, and the fifth and the fourth is unremembered. तो आपको अब इन्हीं चीज़ों पे अगले जो आप नेक्स्ट जीटीज हो गए इसी पे इम्प्रूव करना है. तो कॉन्सेप्चुअल एरर्स को आप अपनी थिंकिंग में कि आपने क्या वो गैप रखा, कि आपने क्या सोचा था और आंसर क्या था, उसमें जो आपका कॉन्सेप्चुअल एरर है उसे आप
क्लैरिफाई करो, ठीक है, बाय रिव्यूइंग योर नोट्स और बाय गोइंग टू द मेन लेक्चर वीडियोज़. सो बाय दिस यू कैन करेक्ट योर कॉन्सेप्चुअल एरर्स. द सेकेंड इज़ कि आपकी सिली मिस्टेक, देखिए सिली मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, सिली मिस्टेक्स को आप कंप्लीटली 100% अवॉइड नहीं कर सकते एंड एक्सेप्ट दिस. आप अपने फाइनल एग्जाम में भी कुछ सिली मिस्टेक्स करके आओगे, बट द मेन टास्क इज टू मिनिमाइज दो सिली मिस्टेक्स. सिली मिस्टेक्स सब करेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक टू कम अपवर्ड अबव ऑल दोज competitors is to minimize your silly mistakes. तो आपको अपने उस पर ध्यान लगाना है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इस ग्रैंड टेस्ट में आपने 10 सिली मिस्टेक्स करे तो इन द नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट योर टारगेट इज़ टू मिनिमाइज दो सिली मिस्टेक्स बाय 8 और बाय 7. So by this step by step you will be going to minimize your silly mistake. The third type of error which was the unremembered, कि मतलब आप भूल गए, आपने पढ़ा तो था लेकिन आप भूल गए. तो इट्स नॉट अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, जो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है, ये आपका जैसे आपके नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ेंगे, आपके फर्स्ट रीड के बाद जो आपका सेकेंड रिविजन थर्ड रिविजन होगा, तो जो ये वाला फैक्टर है इट विल बी गेटिंग इम्प्रूव्ड. एंड द फोर्थ इज़ अननोन. इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रैंड टेस्ट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं जिनका मतलब दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करोगे तो यू विल नेवर इम्प्रूव. तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो सिली मिस्टेक्स हैं और जो कुछ चीज़ें आप जो भूल गए, उन्हें आप एक पर्टिकुलर पेज शीट लेके उस पर आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये पॉइंट्स. और द मेन थिंग, you don't have to write the whole answer or the whole explanation. You just have to write the main key points which you have missed or which was needed to answer that particular question. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारे जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है और जो गेस्ट क्वेश्चंस है उसे क्लासीफाई करोगे. द लास्ट इज़ हाउ टू रिव्यू योर करेक्ट क्वेश्चंस, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब जीडी दे रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने मतलब we were confused in between two options and mark something and that question get correct. तो उस क्वेश्चन में आपको मतलब उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन वो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया तो हम उसे दोबारा रिव्यू नहीं करते, मतलब इसे पीछे मुड़ के नहीं देखते, लेकिन दैट क्वेश्चन विल क्रिएट कन्फ्यूजन इन योर कमिंग प्रिपरेशन. तो उन क्वेश्चंस को भी रिव्यू करना, मतलब आपके जो करेक्ट क्वेश्चंस है उन्हें भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा कम टाइम देके उसे भी रिव्यू करना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बाय दिस you will be able to review your incorrect questions, your unattempted questions, your guessed questions and your correct questions. And the final is you have to review or you have to revise these mistakes before appearing for your next GT. For example, आज आपने संडे को एक ग्रैंड टेस्ट दिया, उसके क्वेश्चंस करे, 200 क्वेश्चंस को आपने इनकरेक्ट, करेक्ट, अनअटेम्प्टेड और गेस में डिवाइड करा. उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को रिव्यू करा, उससे आपकी एक 2 से 3 पेज की एक शीट बन गई, एक नोट्स बन गए, जिसमें आपने उन पॉइंट्स को लिखा जो आप भूल गए थे या आपने कॉन्सेप्चुअल एरर करी या कुछ सिली मिस्टेक्स करी. ठीक है, तो अब आपको उन शीट्स को या उन नोट्स को अपने दूसरे जीटी, जब ऐसे आज आपने संडे को दिया, अगर आप नेक्स्ट संडे को प्लान कर रहे हो तो उस जीटी देने से पहले आपको उन 2-3 पेजेस को रिवाइज करना है. सो बाय दिस you will be start realizing your mistakes, you will be start to analyzing your mistakes and और आपको ये फॉलो करने से आपके जो ग्रैंड टेस्ट में जो एक जो स्कोर आपका स्टक हो जाता है 130-140 पे, या फिर मतलब किसी भी आप स्कोर रेंज में हैं, तो आपको दिखेगा कि योर स्कोर्स आर स्टार्टिंग टू इम्प्रूविंग. So guys, follow these 5 steps. First of all, fix your particular date and for particular time. Take a break between giving the GT, completing the GT and reviewing the GT. The third is dividing your mistakes, dividing your 200 questions into correct, incorrect, guessed or unattempted. Fourth is reviewing your mistakes, whether it was a conceptual error, silly mistake, unremembered or unknown. And the fifth is revising those mistakes before appearing your next GT. So hope this will help you guys in reviewing your GT, and I will be planning the next video according to your doubts.
So you can ask your questions in my comment section and I will be plan my next video according to those questions. So bye.